Hi friends, do you have a dream to study abroad? If yes, then you are watching this video right. Because in this video we're gonna share कुछ ऐसी बातें जो आपके मन ही मन पनपती होंगी while studying before into the abroad. So let's get started and think about it and find out कि आपके लिए क्या चीज़ best है और क्या चीज़ गलत. Watch this video till the end. Come and follow me. Hello ma'am. Hi, what is your good name? Ma'am, my name is Manurav. Hi Manurav, welcome to Studyberg. How can I help you? Ma'am, I wanted to know, like, I want to study abroad, so that's why I'm looking for a good counselor who can counsel me well. Okay, so for which country are you looking? Specifically, I'm looking for Canada right now, but if you can guide me well, then I can decide well. Okay, no problem. I can guide you. So first of all, I want to know, have you given your IELTS or not? No, I haven't. Not given. So are you planning to give or you want to go without IELTS? Ma'am, is there any option for that also? Yeah, we have option. You can go in UK, but उसमें आपको देखना पड़ेगा you are meeting your English requirements or not. Okay. ठीक है, but no problem. Are you carrying all your academic documents? Yes, ma'am. Okay, no problem. I'll assist you with the best counselor. She will give you the best services and will explain you each and everything about the overseas education. सो मैम मेरे को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने थे जो शायद आप मे बी सब बच्चे आपसे पूछते ही होंगे. सो मेरे को ये पूछना था कि जो सबसे चीपेस्ट कंट्री हमारे लिए कौन सी है. हम स्टडी करने जाएंगे बाहर तो सबसे चीपेस्ट कंट्री हमारे लिए कौन सी है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कोप कौन सा बेटर है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेदर कंडीशन में भी होता है कि इफ़ आई एम फ्रॉम दिल्ली मे बी मुझे कनाडा का वेदर सूट कर जाए, बट अगर मेरा कोई फ्रेंड साउथ से बिलोंग करता है तो उसके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल वहाँ पर रहेंगी चीज़. Okay, so taking your questions, if you are talking about the cheapest country out of all the countries, I would suggest you to go for the Canada. Okay. And if you are talking about the weather conditions and everything, then Canada has the suitable conditions, weather conditions. Because in India we do have like this 30-40 temperature. There also they do have in British Columbia specifically the 30-40 temperature. So you can easily adjust over there. Yeah. So my mom was telling me something about IELTS, and is there any option without IELTS also? So IELTS is an English proficiency test which stands for International English Language Testing System, and it is affiliated to British Council and IDP. So students go for that also, and yes, it is compulsory test for more specifically for like every country, and you have to give that IELTS exam. And yes, you have different modules in that, and you have to score the minimum criteria, reach to the minimum criteria to get ahead with that. And yes, you do have options without IELTS as well. So many countries provide you the IELTS waiver options. So specifically for English speaking countries, if I talk about, then yes, UK is the best option for you. Yes, UK is the best option for you, and for that you have to meet the minimum eligibility criteria for that. Yes, so on the basis of 12th standard English marks, you can get the IELTS waiver easily. For the further details and the detailed discussion, I'll let you speak with the IELTS trainer. So she will be there. So shall we move to that? Yeah, sure. Hi, my name is Ahino. I'm one of the IELTS trainer at Studyberg. Studyberg is a one-stop solution for any students who aspire to study abroad. As you know, IELTS is very important to get into any good universities abroad. Studyberg today brings you this opportunity so that you can learn and you can know for yourself what you have to take further. We give IELTS training every twice in a week so that students can know how we're giving the services. Here at Studyberg, we give importance to our student queries because that is our top priorities. So if you're looking for IELTS training classes, please join Studyberg because we give the best training for IELTS coaching, and you can back your dreams university tomorrow. And join us for study visa as well because we are trusted name in study visa. Oh, रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ. Please stay tuned for the upcoming video because if you're looking for study visa, my manager can give you more information about this. Hi sir, my name is Manurav. Will you please guide me that how I can go abroad to study? Yeah, hi Manurav. I branch manager of this company, Studyberg, Bharat this side, and I will definitely guide you how to go for a study abroad. Students जो होंगे जो वहाँ पे जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके पास वहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी. सो सर बेसिकली मेरा एक सवाल था, जिस तरीके से मेरे को मैम ने बताया तो मेरे को जानना है कि क्या बेसिक स्कोप है बाहर पढ़ने का. जी, अगर स्कोप की आप बात करोगे तो स्कोप यही है कि बहुत डिफरेंस है हमारी एजुकेशन से और ओवरसीज एजुकेशन से. उसमें क्या होता है कि बाहर अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो तो आपको सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में लगेगा कि आप यहाँ पे पढ़ते हो, आपके जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं वो सारे यही एक ही कल्चर के हैं. बट अगर आप बाहर जाओगे तो सिर्फ
उसी कंट्री के नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड वहाँ से स्टूडेंट आके आता है पढ़ने के लिए, तो मल्टी कल्चर आपको एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे। माइंडसेट भी काफ़ी एक तरीके से अच्छा मिल सकता है। यस, एंड नंबर 2 जो मेन है वहाँ पर ये है कि अभी हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन है वो अभी ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। और बात करी जाए और बाहर की, अगर ओवरसीज एजुकेशन की बात करें लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ की क्वालिफिकेशन जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। आप वो लेने के बाद अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं कि दैट आई हैव डन माय ग्रेजुएशन और माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस कंट्री, तो यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर। सो सर मेरे को आपसे पूछना है कि जो आपने कंट्रीज़ के बारे में बताना था, आप लाइक थोड़ा कंट्रीज से बता सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर हम जाकर अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं? देखो, अगर आप बात करें, एजुकेशन किसी भी कंट्री की ख़राब नहीं होती। एजुकेशन आप लेना चाहें किसी भी कंट्री से ओवरसीज एजुकेशन में जाकर के आप ले सकते हैं, बट उसका क्राइटेरिया अलग होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। पीजी के लिए जाना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हो, या अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके इंटरेस्ट पे और आपका क्या मोटिव है वहाँ पे जाने का। मीन्स काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ये हैं कि कंप्लीशन करने के बाद, अपनी डिग्री लेने के बाद ट्राई करते हैं कि मुझे वहाँ पे पीआर ही लेना है। देखो, अगर ऐसा हम नहीं कह सकते कि कौन सी कंट्री बेटर है और कौन सी कंट्री नहीं बेटर है एजुकेशन के लिए, बट अगर हम रीसेंट फेज़ की बात करें तो मेजरली जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो 4 या 5 कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा है, विच इज़ यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें तो इन कंट्रीज़ की तरफ स्टूडेंट्स का रुझाव जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फाइन। एंड आपको जैसे पता है कोविड-19 की वजह से अभी अदर कंट्रीज़ के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं आर क्लोज राइट नाउ, और सिर्फ अभी यूके ही है जिसने अभी अपने बॉर्डर्स ओपन कर रहे हैं। और तो बच्चे वगैरह वहाँ पे भी फ्लाई भी कर रहे हैं, जा रहे हैं अपना स्टडी के लिए, वो अपना स्टडी वहाँ पे आकर कर सकते हैं। मेन 5 कंट्रीज़ आप बोल सकते हो जो टॉप पे चल रही हैं। इंडिया से अगर बात करी जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फ्लो है वो इसी कंट्रीज़ में जाना चाहता है। ओके, आंसर व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग? देखो, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का आप अगर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ मुझे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में ही जाना है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसी में ही जाना है। उसके लिए मेन सबसे बड़ा फोकस ये हो जाता है कि आप उस कंट्री या आप उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कि आपकी प्रोफाइल या जो आपका एंट्री रिक्वायरमेंट है वो वाला क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है। अगर आप वही चीज़ बात करेंगे, अगर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ हाई रहता है। तो वो स्टूडेंट को देखना है कि उसमें वो मीट कर रहा है उसका एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया या नहीं कर रहा है। और नंबर 2, अगर आप बात करते हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी, तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ 2 बिहाफ पे देखा जाता है। एक तो वर्ल्ड रैंकिंग, एक कंट्री रैंकिंग। तो वर्ल्ड रैंकिंग में वो यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको उसके हिसाब से जाना है, या उस कंट्री में उस यूनिवर्सिटी क्या रैंकिंग है जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो रैंकिंग की बात करती है कि अगर आपने पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी कर ली कि वो टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उस कंट्री की, बट वो यूनिवर्सिटी आपका कोर्स ही नहीं प्रोवाइड करवाती। अगर आप बिज़नेस का कोर्स देख रहे हैं तो उस बिज़नेस का कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं ना कि आपको उस टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाना है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कोर्स सिलेक्शन है उस सिलेक्शन में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है या ओवरऑल उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। आंसर, आपने कोर्स सिलेक्शन की बात करी या फिर आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन बस ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जाना चाहता है तो उसको कौन सा कोर्स या कौन सा डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए जिससे कि उसको अपना अच्छा फ्यूचर दिखे आगे? देखो, अगर तो बात है कि ओवरसीज एजुकेशन में आपने जाना चाहता है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई भी एजुकेशन करी है पास्ट में तो आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी। अगर आप बोलते हो कि मेरे को अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है तो यू कैन गेट ईजिली एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूट। कि मैं अभी साइंस पढ़ रहा था तो मेरा साइंस में मन नहीं लग रहा तो आई वांट टू स्विच, तो मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ या मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। बट अगर आप बात करते हैं ओवरसीज एजुकेशन की, ओवरसीज एजुकेशन में ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो एक SOP में पूछते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि वाई आर यू चेंजिंग योर स्ट्रीम। अगर आप अभी साइंस ले रखी थी आपने तो अभी आप बैचलर्स में क्यों स्विच कर रहे हो, या आप आर्ट्स हॉस्पिटैलिटी में क्यों स्विच कर रहे हो। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उससे रिलेवेंट रिलेटेड कोर्स में आप अगर जाएंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली वीज़ा। ओके। आंसर, व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर? बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि 10 से 15 लाख रुपए तो
एक ईयर का लगता होगा इंडियन करेंसी के हिसाब से। हाँ, ये फ़ी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो फ़ी स्ट्रक्चर का डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी कंट्री की बात करें तो, और कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है कि एक कंट्री का ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में अगर 10 लाख रुपए आपके एक साल के लग रहे हैं तो दूसरी कंट्री में भी 10 लाख रुपए एक साल के लगें, फाइन। और लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें कि आपको वेदर यू कैन सर्वाइव ओवर देयर और नॉट, मीन्स अपार्ट फ्रॉम योर फ़ी, अगर हम बात करें कि फ़ी के अलावा जो लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो उनके लिए 10 से 15 लाख रुपए एक साल के लिए मान के चलिए आप। तो सर मेरे को बेसिकली अब ये पूछना है कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर कनाडा में वर्क कर रहे हैं, इवन दो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हमारे जो न्यू कमर्स लाइक न्यू स्टूडेंट्स जो होंगे जो वहाँ पे जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके पास यहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी? ओके, देखो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन सी कंट्री में जा रहे हो। अपनी अपनी कंट्रीज़ की अलग अलग वीज़ा कंडीशंस हैं जिसमें वो क्लियरली मेंशन होता है कि यू कैन वर्क 40 आवर्स फॉर फोर्टनाइट, मीन्स दैट मीन्स 20 आवर्स एक बच्चा जो है वो एक वीक में काम कर सकता है, फाइन। तो उसमें ये ड्यूरिंग योर कोर्स कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली बात है वाइट कॉलर जॉब उनको नहीं मिलती है, दे कैन वर्क एज अ हॉस्पिटैलिटी, दे कैन वर्क इन अ रेस्टोरेंट एज अ पार्ट टाइम। तो स्टूडेंट काफ़ी अर्न कर लेते हैं वहाँ पे, मीन्स अगर 2 सेमेस्टर की बात करी जाए, 2-3 सेमेस्टर, इवन दे कैन सपोर्ट देयर पेरेंट्स। ओके, एंड सर इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन गोज ओवर देयर तो मे बी हो सकता है कि उसको वेदर अफेक्ट करे, अकोमोडेशन प्रॉब्लम हो, या फिर लाइक सम आप कह सकते हो कि कोई कल्चर डिफरेंट हो, तो उसमें आप किस तरीके से बच्चों की हेल्प करते हैं? देखो ऐसा है कि अकोमोडेशन की अगर आप बात करें तो 2 तरीके के अकोमोडेशंस रहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कंट्री की। अगर आप बात करते हो, अगर बच्चा चाहता है तो यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस अपने हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड कराती है, स्टूडेंट वहाँ पे जाकर के रह सकता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, वहाँ पे शेयर्ड अपार्टमेंट्स ईजिली अवेलेबल हैं जहाँ पे स्टूडेंट $200 to $300 पर वीक अगर आप अपना स्पेंड करता है तो वहाँ पे जाकर के वो ईजिली रह सकता है वहाँ पे। और वेदर की बात करें तो येस, ऑस्ट्रेलिया का जो अगर आप वेदर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर नॉर्मल है जैसे एज इंडिया, और बट कनाडा में येस डिफ़िकल्टीज आती हैं थोड़ी बहुत ही स्टूडेंट्स को, बट एज सच नहीं है, स्टूडेंट कैन सर्वाइव ओवर देयर। आप थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अपना टाइम और पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करना है ओवरसीज जाके। नाउ इट्स टोटली ओवर टू यू।